Hello everybody, Namaskar to you all. I am Dr. Annu Bhai Soni, again connected with you to open the discussion over a very important, very significant topic of the Indian Constitution. This is fundamental rights, which is incorporated under the Indian Constitution in its part 3rd under Article 12 to 35. This topic, this matter is very important not only for the law students but for such candidates who are preparing for civil services examinations, for public services examinations, and for laymen also who are very keen to know about the fundamental rights and the know-how regarding the exercise and enforcement of the fundamental rights. So let us try to understand what are the human rights, what are the fundamental rights, and how they are enforced, how these are enforced under Constitution of India through several articles. आज से हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय वस्तु पर चर्चा प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसे कहते हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत दिए गए मूल अधिकार। ये सभी प्रकार के लोगों के लिए इसकी जानकारी परम आवश्यक है और महत्वपूर्ण है, चाहे वो कानून के विद्यार्थी हों, चाहे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र हों, चाहे सामान्य जिज्ञासु व्यक्ति हों। सबके मन में रहता है कि आखिर फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, हाउ दीज आर इन्फोर्स्ड, हाउ दीज आर इम्प्लीमेंटेड, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस these can be enforced and what is its importance। तो ये सब बातों का उत्तर जो है देने के लिए ये सब्जेक्ट को हम लोगों ने चुना है आपके साथ चर्चा के लिए। बड़ा बृहत इसकी विषय वस्तु है, चर्चा में काफ़ी लंबा समय लगेगा यदि हम इसे निर्णीत प्रकरणों की सहायता से जैसे इसका विवेचन शुरू करेंगे। इट विल टेक मच टाइम, इसलिए आपके समक्ष इसके कुछ जो प्रिलिमिनरी जो इसका कंसेप्ट है, इसकी जो प्रारंभिक बातें हैं उस पर हम चर्चा करेंगे, ताकि आपको कम से कम इसके बारे में ये आइडिया हो कि वास्तव में मूल अधिकार क्या हैं, इनको किस प्रकार से भारतीय संविधान के अंतर्गत स्वीकार किया गया है और किन परिस्थितियों में ये अधिकार आपको प्राप्त होते हैं, क्या ये अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। ये बहुत सारे इसके संबंध में प्रश्न हैं, इस पर अपन चर्चा करेंगे। Before making discussion over the fundamental rights, I would like to draw your kind attention towards one more very, very important, very significant concept of the right, and this is the human rights. Human rights and fundamental rights both are very important, very significant, and one has a global impact which you must know. Some viewers are very keen to know whether the fundamental rights are different from the human rights and what are the human rights, how the human rights are different from the fundamental rights. So today we are going to discuss on this matter also. What are the human rights and how it is different from the fundamental rights. तो सबसे पहले हम यहीं से इसकी चर्चा की शुरुआत करते हैं कि मानव अधिकार क्या है और मूल अधिकार क्या है। मूल अधिकारों के बारे में चर्चा शुरू करने से पहले थोड़ा सा अपन मानव अधिकार पे चर्चा कर ले। मानव अधिकार जो है
वो एक व्यक्ति को मनुष्य के रूप में जन्म लेने के कारण ही प्राप्त हो जाते हैं। देखिए, सिंस यू आर ए ह्यूमन बीइंग, सो यू हैव ए ह्यूमन राइट्स। आपको किसी और अतिरिक्त उसके लिए योग्यता की आवश्यकता नहीं है। यू डोंट रिक्वायर एनी एडिशनल क्वालिफिकेशन फॉर हैविंग ह्यूमन राइट्स। इफ यू आर ए ह्यूमन बीइंग, then it is more than sufficient to claim the human rights. यदि आप मनुष्य हैं तो आपको मनुष्य होने के नाते मानव अधिकार प्राप्त है। ठीक है, इसलिए कहा गया है कि ह्यूमन राइट्स जो है, इट इज मैंडेटरी, इट इज नेसेसरी फॉर रियल लाइफ with dignity. Real life of the human being with dignity. For this, the human rights is mandatory, it is essential. जबकि मूल अधिकार क्या है? ये आपके नॉर्मल लाइफ के लिए जरूरी है। इट इज एसेंशियल फॉर योर नॉर्मल लाइफ. What is the difference between the real life and normal life? The word normal life includes the social development, cultural development, advancement in the personality, advancement in the career, advancement in the social curriculum, social activities, advancement in the citizenship, advancement in your total personality. So when you need a development, advancement in your total personality, then you need fundamental rights. Without having fundamental rights, you cannot imagine about the development of, about the total development of the personality. व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए, एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए उसे अधिकार संपन्न होना ही होगा। उसे कर्तव्य का भी पालन करना होगा, लेकिन उसे अधिकार संपन्न होना ही होगा। जब तक आप उसे कुछ एलिमेंट्री राइट्स नहीं देंगे, कुछ मूल अधिकार नहीं देंगे, तब तक वो नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार सकता। एज ए ह्यूमन बीइंग अपनी लाइफ गुजार सकता है, बट एज ए एक्टिव सिटीजन, एज ए राइटफुल सिटीजन, वो अपने जीवन में विकास नहीं कर सकता। तो अंडर द डेमोक्रेटिक सिस्टम लाइक इंडिया, द सिटीजन मस्ट हैव सर्टेन एलिमेंट्री राइट टू डेवलप देयर ओन पर्सनैलिटी। अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए उसके पास कुछ एलिमेंट्री राइट्स होने चाहिए। उसके बिना वो विकास की बात सोच भी नहीं सकता। तो फंडामेंटल राइट्स आर द एलिमेंट्री राइट्स which are needed by the citizen, which are needed by the countryman for his complete development, for his year by year, day by day increase, development, advancement in the personality, in the social life also. तो ये हुआ आपका मूल अधिकार, जो आपके नॉर्मल लाइफ के लिए, विकास की ओर आगे बढ़ने के लिए, सभ्यता की ओर आगे बढ़ने के लिए, निरंतर विकास करने के लिए, सामाजिक मूल्यों को स्थापित करने के लिए, एक व्यक्ति के रूप में समाज में अपने आप को स्थापित करने के लिए और एक सभ्य और सशक्त समाज बनाने के लिए वहाँ के नागरिकों में ये होना ही चाहिए। इट इज़ ए फंडामेंटल राइट विच आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि भारत के संविधान के द्वारा जिसकी गारंटी दी गई है कि दीज फंडामेंटल राइट्स आर प्रोटेक्टेड, सीरियसली प्रोटेक्टेड। जबकि ह्यूमन राइट्स क्या है? ह्यूमन राइट्स जो है इसका एप्लीकेशन ब्रॉडर एप्लीकेशन, कंपेरिजन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, द ह्यूमन राइट्स इज ब्रॉडर एप्लीकेशन बिकॉज इट हैज ए ग्लोबल
impact. It is a global concept. मूल अधिकार तो आपके देश के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत बंधे हुए हैं कि आप अपने देश के जो टेरिटोरी है, अंडर द टेरिटोरी ऑफ योर कंट्री यू विल प्रोवाइड द फंडामेंटल राइट. बट सो फॉर द ह्यूमन राइट्स आर कंसर्न, it has a global implementation, it is a global enforcement, it is a global concept. आप किसी भी देश के हों, किसी भी देश के नागरिक हों, कहीं भी रहते हो, if you are a human being then you have a human right. Okay, the human rights has a global implementation, it has a global impact, whereas the fundamental rights is territorial. It is confined under the territory of particular country. It is specific to particular country. But so far the human rights are concerned, it has no boundary. It is not confined under the boundary of the nations. It has a universal concept. It has a universal application. तो पूरे विश्व में जो है ये मानव अधिकार जो है स्वीकृत है. जहाँ मानव अधिकार पूरे विश्व में स्वीकृत हैं, वहीं जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो राष्ट्र के भीतर स्वीकृत है. राष्ट्र के बाहर उसका क्लेम आप नहीं कर सकते. यू कैन नॉट क्लेम फंडामेंटल राइट्स आउट ऑफ द टेरिटोरी ऑफ द इंडिया. सिंस यू आर ए इंडियन सिटीजन, सो यू हैव ए फंडामेंटल राइट्स विद इन द टेरिटोरी ऑफ इंडिया, नॉट द आउटसाइड ऑफ द टेरिटोरी ऑफ इंडिया. बट सो फॉर द ह्यूमन राइट इज कंसर्न, it is beyond the limits of the territory. आप कहीं भी रहेंगे, you have human rights. आप दक्षिण अफ्रीका किसी देश में हैं तो भी आपको ह्यूमन राइट्स प्राप्त हैं. और एक इसके संबंध में एक और अंतर आपको समझ में आएगा कि ह्यूमन राइट्स आर ओरिजिनेटेड बाय द चार्टर ऑफ द यूएनओ. यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के चार्टर के द्वारा मानव अधिकारों की घोषणा की गई. डिक्लेरेशन ऑफ द चार्टर ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स. डिफरेंट conventions and charters have declared the human rights time to time, and it is these rights are protected by the UNO through the international court. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों के द्वारा और भी फोरम के द्वारा इसको यूएनओ के द्वारा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इसे प्रोटेक्टेड किया गया, इसको लागू किया गया है. जबकि फंडामेंटल राइट जो है, इट इज गवर्न बाय द कोर्ट ऑफ लॉ. इट इज गवर्न बाय द कोर्ट ऑफ लॉ ऑफ स्पेसिफिक कोर्ट ऑफ द स्पेसिफिक कंट्री. ये देश के भीतर देश के न्यायालयों के द्वारा ये लागू किया जाता है. इट इज इन्फोर्स बाय द लोकल लॉ, इट इज इन्फोर्स बाय द कोर्ट ऑफ द पर्टिकुलर कंट्री. बट सो फॉर द ह्यूमन राइट्स आर कंसर्न, दीज आर इन्फोर्स बाय द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस with the help of the UNO. So these are the certain points to differentiate the human rights from the fundamental rights. Okay, तो आप ये कह सकते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो काफ़ी हद तक के ह्यूमन राइट्स पर आधारित हैं. आप देखेंगे कि मानव अधिकारों की जब आप चर्चा करेंगे तो उसमें बहुत सारे जो मानव अधिकार हैं उन्हीं को हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स के रूप में अपने संविधान में जगह दी है. और आप देखेंगे कि जो फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन, ह्यूमन राइट्स यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स का जो चार्टर है, उसमें आपके देश में जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है, जो आपका फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल अंडर आर्टिकल 14, ये मानव अधिकार के चार्टर में इसका उल्लेख है. इसका ये मतलब हुआ कि मानव अधिकार में जिन चीज़ों को शामिल किया गया है लगभग उन्हीं में से हमने अपने मूल अधिकारों की चर्चा की है. लेकिन ये भी बात सच है
कि तमाम प्रकार के जो मानव अधिकार हैं वो सब के सब अभी मूल अधिकार के रूप में स्वीकार नहीं किए जा सके। उनके पीछे बहुत सारे कारण हैं। तो चले अब अपन अपने मूल विषय की ओर आए, जो है हमारा फंडामेंटल राइट्स। नाम से ही आपको लगता होगा कि ये मूलभूत अधिकार है। इट इज नॉट ए ऑर्डिनरी राइट, है ना। इट इज ए स्पेसिफिक राइट्स given by the specific law, that is constitution. Ordinary rights are provided by the ordinary law, the Transfer of Property Act, and in different types of the law we have, which provides you the different type of the rights and duties. But the fundamental rights are given by given and guaranteed with the Constitution of India, the supreme law of the country. So it is a specific right. It is not an ordinary right. It is an elementary right. It is which is guaranteed and provided by the Constitution of India. तो साधारण अधिकार नहीं है, मूलभूत अधिकार हैं, जिसके बिना एक नागरिक एक स्वतंत्र राष्ट्र के नागरिक होने की कल्पना भी नहीं कर सकता। इसलिए जस्टिस पी.एन. भगवती साहब ने कहा है कि मूल अधिकारों का जो उद्गम है, द ओरिजिनेटिंग पॉइंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, वो कहाँ है? तो उन्होंने कहा स्वतंत्रता के संघर्ष में है। जब आप आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे तो उसके वहीं से इसका उद्गम है। दिस वाज द ओरिजिनेटिंग पॉइंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। क्यों? क्योंकि गुलामों को कोई अधिकार नहीं होता। एक गुलाम व्यक्ति जो है वो अधिकार की बात करना तो दूर, सोच भी नहीं सकता। उसके लिए सिर्फ कर्तव्य है, सिर्फ सेवा है, सिर्फ चाकरी है, अधिकार तो है ही नहीं उसके पास। तो एक स्वतंत्र व्यक्ति, गुलामी और स्वतंत्रता में फर्क क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्लेवरी एंड इंडिपेंडेंसी? दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू, that the independent person has some rights, where slave has no right. गुलाम व्यक्ति के पास कोई अधिकार नहीं होते। स्वतंत्र व्यक्ति के पास वो अधिकार होते हैं। वो क्या अधिकार होते हैं? यही अधिकार होते हैं, फंडामेंटल राइट्स। आपने देखा कि स्वतंत्रता का अर्थ जो है, उसके अर्थ में ये बात छुपी है कि हम गुलामी से स्वतंत्रता की ओर जब आएंगे तो हमारे साथ कुछ अधिकार होंगे, और उन अधिकारों के साथ हम पूरी सभ्यता से, पूरी प्रतिष्ठा से, पूरी शान के साथ जीवन जिएंगे और अपना एक नागरिक के रूप में अपना विकास करेंगे। तो बिना इस फंडामेंटल राइट्स के इन चीजों की कल्पना ही हो सकती। इसलिए भगवती साहब ने बहुत सही कहा कि स्वतंत्रता के संघर्ष में ही इसका उद्गम था, उद्गम है। इन अधिकारों के लिए ही आपने लड़ा, इन अधिकारों के लिए आपने संघर्ष किया। चूंकि आपने डेमोक्रेटिक सिस्टम को अडॉप्ट किया है, आपके देश में लोकतंत्री व्यवस्था है, तो वहां पर मूल अधिकार और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। वहां पर मूल अधिकार और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि लोकतंत्री व्यवस्था से यदि आप मोनार्की की ओर जाएं, डेमोक्रेसी की तरफ से आप मोनार्की की ओर जाएं, तो आप पाएंगे कि जो राज सत्ता होती थी, लोक सत्ता ना होकर जब राज सत्ता थी, रियासतें थी, है ना, राजा का शासन होता था, तो उस जमाने में अधिकार जो थे इतने विस्तृत रूप से नागरिकों को प्राप्त नहीं थे। उस समय मूल अधिकारों की बात नहीं थी। राजा ने जो अधिकार आपको दे दिया वो दे दिया। और आज स्थिति क्या है कि वी हैव डेमोक्रेसी, एंड डेमोक्रेसी हैज द गोल्डन रूल दैट गवर्नमेंट इज द पीपल, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल एंड गवर्नमेंट फॉर द पीपल। इन जनता ही सरकार है, जनता के लिए ही सरकार है। तो ऐसी स्थिति में जो मूल अधिकार हैं वही इस डेमोक्रेसी को
है मजबूती प्रदान करते हैं कि हम सही मायने में डेमोक्रेटिक कंट्री के एक स्वतंत्र नागरिक हैं, क्योंकि हमारे पास मूल अधिकार हैं जो कि कैसे हैं, गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. And in India, the Supreme Court, Honorable Supreme Court, has been designated as a guard of the fundamental rights, custodian of the fundamental rights. कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट जो आपके देश की टॉप क्लास जुडिशरी है, एक प्रकार से आप कहें तो सर्वोच्च संस्था है न्यायपालिका की, है ना, और उससे बड़ी प्रतिष्ठा और किसी संस्थान में आपको देखने को नहीं मिलेगी, है ना, जो समय समय पर सरकार पर भी नियंत्रण करती है, सरकार को भी आईना दिखाती है. तो ऐसे प्रतिष्ठित सुप्रीम कोर्ट को कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट इज कस्टोडियन एंड विजिलेंट गार्ड ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. इतना महत्वपूर्ण अधिकार है. अब देखिए, ये अधिकार की थोड़ी सी हिस्ट्री भी है कि अधिकार कैसे अस्तित्व में आया. सिर्फ आपके यहाँ ही नहीं, आपके यहाँ तो जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना 1950 में, तब इसको इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया. लेकिन इसके पहले सन 1215 में, ड्यूरिंग द 13th सेंचुरी इन इंग्लैंड, ब्रिटेन में लोगों ने सम्राट जॉन, जो समय के सम्राट थे, सम्राट जॉन से, किंग जॉन से लोगों ने नागरिक अधिकार मांगा था पहली बार. फिर उसके बाद फ्रांस में भी इस प्रकार के अधिकार पत्र जारी हुए. अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहली बार 1791 में, ड्यूरिंग 1791, द बिल ऑफ राइट्स was inserted. अमेरिकी संविधान में पहले ये फंडामेंटल राइट्स का कोई कंसेप्ट नहीं था, लेकिन 1791 में इसमें बिल ऑफ राइट्स जोड़ा गया, डाला गया. उसी को हम बोलते हैं अधिकार पत्र. इसी को इंग्लैंड में कहा गया था मैग्ना कार्टा. इसीलिए फंडामेंटल राइट्स को कहा जाता है कि मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अधिकार पत्र, मैग्ना कार्टा का मतलब होता है नागरिकों को दिया जाने वाला अधिकार, या नागरिकों को दिए जाने वाले अधिकारों की घोषणा करने वाला जो पत्र है, उसको कहा गया मैग्ना कार्टा. सिंस द फंडामेंटल राइट्स आर द डिक्लेरेशन ऑफ द सिविल राइट्स, बेसिक राइट्स by the constitution, so it is known, it is designated as a Magna Carta of Indian Constitution. तो इसका इतिहास वहां से मिलता है. ठीक है. भारत में भारतीय संविधान जब 1950 में लागू किया गया, तो इसके पार्ट 3 भाग 3 आर्टिकल 12 to 35, you'll find there article 12 to 35, and these articles are relevant with the fundamental rights. कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 भाग 3 का संबंध किससे है? इसी मूल अधिकारों से है. और ये आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक में बताए गए. कितने में? आर्टिकल अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में विभिन्न प्रकार के मूल अधिकारों की चर्चा की गई है. ठीक है. तो इन मूल अधिकारों के बारे में एक बात और, इतना जैसे अभी चर्चा में आप बात आ रही है कि इतना बड़ा अधिकार है, इतना महत्वपूर्ण अधिकार है, whether these rights can be abolished, can be terminated, can be amended by the government or not. Very significant, vital question frequently asked by the viewers and the students during the lecture. इतना महत्वपूर्ण अधिकार है जो कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटीड है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रोटेक्टेड है ना, डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा
वो की बहुत बड़ी फिलॉसफी है, इट इज ए फिलॉसफी ऑफ द डेमोक्रेसी। तो क्या ऐसे अधिकारों को कभी खत्म किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है? तो इस संबंध में एक बात आप सुने कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का प्रोविजन है। वी हैव ए प्रोविजन टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये प्रश्न बार बार उठा कि क्या फंडामेंटल राइट्स को भी ऐसे अमेंडमेंट के द्वारा खत्म किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है? तो उसके संबंध में मुकदमे हुए। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का मामला इसके संबंध में निर्णायक मामला है, जिसमें कहा गया कि संसद को संविधान में संशोधन करने की असीमित शक्ति है। संसद जो है, पार्लियामेंट जो है, उसे संविधान में संशोधन करने की शक्ति है, असीमित शक्ति है, कर सकती है। वो फंडामेंटल राइट्स को भी टच कर सकती है, लेकिन संविधान के जो बेसिक फीचर्स हैं, जो बेसिक स्ट्रक्चर हैं, उसको खत्म नहीं कर सकती। चूंकि फंडामेंटल राइट्स आर आल्सो बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, it is a structure of the constitution. So you can amend, you can alter, you can make a slight change in fundamental rights. It is allowed, but you cannot destroy it, you cannot abrogate it. आप इसे समाप्त नहीं कर सकते, आप इसको पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते। आप ऐसा कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकते कि इससे लगे कि पूरी तरह से खत्म ही हो गया। ठीक है? तो दिस इज द वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग विच यू मस्ट नो, दैट द पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द फंडामेंटल राइट्स, द प्रोविजंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इन सच मैनर so these are destroyed or abolished. इस तरह से बदल नहीं सकती, इस तरह से चेंज नहीं कर सकती, पूरी तरह से खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, उसका उद्देश्य ही खत्म हो जाए। ठीक, ये एक इसकी बहुत महत्वपूर्ण बात है फंडामेंटल राइट्स की। इसके संबंध में जो मामले हैं उसमें मैंने आपको एक मामला बताया, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इसकी डिटेल्स को आप पढ़ सकते हैं, पता लगेगा आपको। अब आगे चलें कि फंडामेंटल राइट्स की शुरुआत कहाँ से होती है, कहाँ से उसको पढ़ा जाना चाहिए, कितने फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। मैंने बताया आपको, राइट फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35, दीज आर वेल nicely interpreted, nicely provided. But section 14 is very important regarding the fundamental rights, which is right to equality. आर्टिकल जो 14 है वहीं से अपन शुरुआत करते हैं। What is Article 14 and what type of the fundamental rights is provided under this article particularly? Article 14, Article 15, Article 16, 17 and 18, these articles are very important, significant, is the fundamental rights. So what is provided under Article 14? So let us roughly speaking, one by one we can take it, we should take it. Article 14 में क्या है, Article 15 में क्या है, Article 16 में क्या है, Article 17 में क्या है, Article 18 में क्या है? Article 14 इसमें राइट टू इक्वलिटी,
And right to equality has two concepts: equality before law and equal protection of law. Under Article 14, you will find two, two phrases, two important lines. One is equality before law, विधि के समक्ष समता. And next is, that is second is, equal protection of law. These two very important phrases have been incorporated under Article 14. And under Article 15, prohibition of discrimination on the grounds of race, caste, sex, place of birth and religion. माने लिंग, नस्ल, जाति, जन्म स्थान और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा. And right of it is also extension of the right to equality. जहां आर्टिकल 14 में कहा गया कि विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण, वही आर्टिकल 15 में कहा गया कि देयर इज ए प्रोविजन रिगार्डिंग द प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव को रोकने के लिए आर्टिकल 15 है. किस आधार पर? धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, नस्ल के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर और लिंग के आधार पर किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा. तो इट इज एक्सटेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द राइट टू इक्वलिटी. It is a further interpretation, further explanation of the right to equality. And what about the Article 70? Equal opportunity. Equal opportunity in the matter of public employment. लोक सेवा या लोक नियोजन, सरकारी नौकरी कहिए आप उसको सीधा सीधा. लोक नियोजन की विषय वस्तु में या लोक नियोजन के संबंध में सभी को समान अवसर मिलेगा. अवसर की समानता, इक्वल अपॉर्चुनिटी या इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. इक्वलिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. It is given under Article 60. And next, the Article 70. Yeah. It is the abolition of the untouchability. Provision regarding the abolition of the untouchability. अस्पृश्यता, छुआछूत का निवारण. And finally, the Article 18. एवोल्यूशन ऑफ द टाइटल, उपाधियों का समापन. ये आपका जो पहला ग्रुप है फंडामेंटल राइट्स का, इसको अपन बोलते हैं समता का अधिकार, उसके भीतर सब आते हैं. आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18. ओके, अब इस पर डिस्कस करेंगे एक थोड़े से ब्रेक के बाद. थैंक यू.